Just wait a few minutes. All right, so it looks all set. Let's start. Let me share my screen, and then we'll start the very interesting session. So let me know if you guys are able to see my screen. Can someone confirm if it is visible? Yes, visible, Yeah, sir. it's Yes, sir, visible. visible. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you. All right. So as we are starting the officially this 14th session, right? So I hope you guys are very excited, right? Equally, I am very excited to just work with you all. So ये session हमारा हिंदी and English both में रहेगा, right? So whatever you guys feel, right? Just let me know कि किस language में ज़्यादा comfortable आप लोग हो, either in English or like the mix kind of stuff. So I'm okay with everything, right? So let's start. So today, basically, we are going to cover some very interesting because we have done a lot of discussion about the FortiGate firewall. We done discussion about the what is the Fortinet, what is the FortiGate, and we understand few products as well of the Fortinet, right? So one of the product that is the FortiGate we have, for which we are going to start, right, our all journey for the learning this particular course, right? So Fortinet, who is just joined right now, Fortinet is a company, right? And that product is known as the FortiGate. So the firewall which we are going to cover, that is the FortiGate firewall. That is the product. So firewall name is basically FortiGate. जिसको हम पूरा deep dive करेंगे and we'll understand how it is going to work, what all feature is going to happen, and what is different use case is going to happen to just protect your network, right? So this kind of the stuff we are going to understand throughout the session. Okay. So before I start, right, if anyone having any doubt regarding the previous two sessions where we just have the basic discussion about the product, or any other mind, if you're having the question related to any other stuff related to this particular Fortinet, just feel free to ask, because I'm not going to cover about the history and all, because these are just general awareness things which I covered in the previous session. So I can cover, there is no problem, but I just wanted to give you the opportunity so you guys can just go through those all discussion, or in between while doing the full flash training, we'll have the one round of discussion in middle of the trainings, so you guys having the again the brief understanding about the history, about the product and all. But still, if anyone having any question, please feel free to ask. Yes, good evening, Dhirendra. So I can see a lot of people are here. So if anything, anyone have to ask, please feel free. Else I'll start very interesting session that is related to the day zero configuration, right? And this is not a demo class. And this is a day zero class where we will do the real configuration of the FortiGate firewall. So to make this session interesting, last two session where we just covered about the demo, we just discussed about that, product history, product portfolio. But today more we are going to talk about the firewall products, different vendor जो हमारे पास हैं, and we'll do the real time configuration, step by step. All configuration will do that. How it is going to be happen, right? So those all configuration is going to be discussed. All right. So let's start. Okay. So what we are going to do, let me just
log in the lab. So once we start the session, right, we'll have to understand how basically this all lab is going to be covered. So basically you'll get the rack access. Likewise, this is a rack, right? And after logging this rack, right, you'll have to put your username and password. Right now I'm using the admin username and password, but you guys have to use your own username and password. And after using this username and password, you just have to log in. So I'm in login. So while logging, one more thing, you just have to be very careful. Once you log in, you have to select the HTML console, not default console, right? So once you put the username and password, right, and that login, then you just have to put this console. So we have the day zero firewall configuration where we don't have anything. हमारे पास कुछ भी नहीं है where we can do the configuration. So how my journey is going to be started? So let's say suppose आप एक security engineer हो, you are working in the NOC. So पहला task अगर आता है कि you have to configure the firewall. देखो मैं बड़ा in middle of the configuration start कर रहा हूँ, but that is a more important. We can go and discuss about the packet flow. We can discuss about the different deployment method of the firewall. But I'm just going with a very scratch where day zero means, let's just suppose you having the full understanding of the concept, right? So how basically you are going to deploy this firewalls, right? So deployment means the very new firewall. So first you have to understand how my firewall looks like and how it is going to be deployed. So सबसे पहले I can see AS Singh is asking, sir, when will get the access and the URL info. So another document. So definitely, Mr. A Singh, uh, Mr. Singh, like once the everyone complete the enrollment, some are already completed, then definitely you'll get the all the information through your executives, right? So that information will going to be provided very soon, right? So first you have to visualize how basically firewall is look like. So any product if you're going to purchase from the market, it is going to look like in this way. So if you go in the Google, just I just wanted to visualize how basically physically this FortiGate firewall is look like. You just have to go here. Just give me 1 minute. Okay. So how this is going to be happen? So basically, yeah. So you just go in the image, right? After going image, you can see we having a different boxes. You can see this is the how physically firewall is going to look like. So like with the router, like with the switch, right? We having this firewall. So if I just maximize it, you can see here. So this is the model, one of the model. That is the FortiGate model we have. That is a FG200E. This is the one model. Similarly, you might be find, right? Similarly, you might be find different kind of the models. So which models could be? So I'll explain those models because I have the product history list here. So I have the all models available. Likewise, कि 40 manager क्या हमारे पास है, 40 analyzer क्या हमारे पास model का available है, 40 seam क्या हमारे पास available है, right? And along with that all firewall models कि जो भी FortiGate के firewalls है, top selling models क्या market में हमारे पास available है. So those things I have already, right? And I'm going to explain step by step after covering the some basic fundamental of the firewalls. So सबसे पहले आप फायरवॉल खरीदते हो तो देखो जैसे आपके पास राउटर होते हैं, स्विच होते हैं, वैसे ही कुछ ये दिखता है प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट इस तरीके से दिखेंगे कि मान लेते हैं कुछ आपको यहाँ पोर्ट्स दिख रहे हैं, राइट? यू गाइस कैन सी दीज आर द पोर्ट्स. ये यहाँ से probably you will find, let's see why it's not working. For some reason and is not working. Why? Let me see. Let me just restart this pen. Just give me 1 second.
Okay, let me just start it again. Okay, so let me try. Should work now. Yeah, it's working. So what I'm saying, you can see these are the different ports you can see here, right? These are the ports available. So these ports can be used for the LAN connections and could be the WAN connections. So आपको अगर LAN connection करना है तो भी आप इस port को use कर सकते हो. And if you want to connect with the WAN, that is also possibility we can use these ports. राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ LAN के लिए या सिर्फ WAN के लिमिटेड, नहीं, ये कर सकते हैं. और ये पोर्ट्स जो आपके होंगे, दिस कुड बी द टू टाइप ऑफ पोर्ट्स. या तो ये आपके कॉपर होंगे, राइट, या आपके ये फाइबर होंगे. सो फाइबर के केस में क्या लगाना पड़ेगा आपको? एसएफपी लगाना पड़ेगा, राइट. एसएफपी जिसके थ्रू हम फाइबर को एक्सटेंड करते हैं. देखो ये एसएफपी पोर्ट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे. ये सारे एसएफपी के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप एसएफपी लगा सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट गो एंड एक्सटेंड द थिंग्स, राइट. सिमिलरली ये आपके RJ45 केबल्स हैं. इन RJ45 केबल्स के साथ आप बेसिकली क्या कर सकते हो? बेसिकली यू कैन कनेक्ट एनी कॉपर केबल्स जिसको आप लैन केबल बोलते हो, और उससे आप अपनी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड कर सकते हो. सिमिलरली आपको यहाँ पे कंसोल केबल मिल जाएगा, कुछ एलईडी के स्टेटस मिल जाएगा, और कुछ आपका यूएसबी स्टिक्स भी मिल जाएगा. लेट मी फाइंड द सम बेटर पिक्चर, सो आप लोग को थोड़ा सा और बेटर विजिबिलिटी से मिले. लेट मी सी, कोई बेटर व्यू है क्या इसका? या लेट मी सी हियर. सो यहाँ पे देखो आप इस फायरवॉल पे देखो अभी. सो यहाँ पे देखो. सो यहाँ पे देखो अभी आपको बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट. थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज भी कर पा रहे हो कि यहाँ पे कंसोल केबल भी है. सो कंसोल केबल, आई थिंक आप सबको पता होगा कि व्हाई वी नीड अ कंसोल केबल. कंसोल केबल के थ्रू आप फायरवॉल का CLI एक्सेस लेते हो, राइट, जिसके थ्रू आप फायरवॉल को बेसिक इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. आपके पास यहाँ पे कुछ वैन पोर्ट डेडिकेटेड है जिसको आप वैन की तरह यूज कर सकते हो, वैन 1 वैन 2, राइट. यहाँ पे आपके DMG पोर्ट्स भी हैं, राइट, जिसको आप यूज कर सकते हो. माइट भी हर मॉडल पे ना लिखा मिले आपको, कुछ मॉडल पे आपको प्लेन ही मिल जाए. और ये भी कुछ बिना नेमिंग के पोर्ट्स हैं, इसको भी हम यूज करते हैं लैन या वैन की तरफ. बट कुछ स्पेसिफिक पोर्ट भी आप डिजाइन किए रहते हैं कुछ कुछ फायरवॉल पे, जिसपे आपको लैन या वैन कितने या DMG के लिए आप स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पोर्ट्स दिखेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट पोर्ट्स यू कैन डू योर ऑल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट. इसके साथ साथ इसमें आपको यूएसबी पोर्ट, जिसके थ्रू आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, सो यू कैन डू द ऑल फाइल ट्रांसफर कॉन्फ़िगरेशन. जैसे आपको iOS कॉपी करना है, कोई आपकी लाइसेंस फाइल आपको डालना है फायरवॉल के अंदर, या उससे बाहर निकालना है, राइट, कोई रिपोर्ट निकालनी है, तो वो सारी चीजें भी आप यूएसबी के थ्रू कर सकते. मतलब किसी तरह का कोई फायरवॉल से फाइल एक्सचेंज करना चाहते हो, देन यू कैन डू वाया दिस USB पोर्ट, राइट. दिस इज सप्लाई, दिस इज द पावर सप्लाई, यू कैन सी सम LED स्टेटस. ये सारी चीजें आपको फायरवॉल के ऊपर मिलेगा, राइट. यू जस्ट कैन विजुअलाइज फिजिकली हाउ फायरवॉल इज गोइंग टू लुक लाइक. सो फायरवॉल आपको कुछ इस तरीके से ही दिखेगा. एक बॉक्स होगा, जैसे नॉर्मल राउटर होता है, नॉर्मल स्विच होता है, ऐसे ही कुछ आपको बॉक्स होगा. इस बॉक्स के ऊपर इसका नाम होगा फोर्टिनेट का, और इसके नीचे FortiGate लिखा होगा और उसका मॉडल नंबर लिखा होगा, राइट. ये मॉडल नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एन नंबर ऑफ द मॉडल्स. वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा मॉडल है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, और ये मॉडल मैं क्यों यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि आप सारा मॉडल यूज कर लोगे, बट आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से यू जस्ट हैव टू यूज दिस मॉडल नंबर, राइट. तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ देता हूँ क्या क्या मॉडल नंबर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फिर उसके अंदर क्या क्या कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है डेटा सेट पे, अगर हम और डीप डाइव करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक मॉडल नंबर के बारे में. जैसे FortiGate 7000 F सीरीज का फायरवॉल है. इट इज लाइक द, you can see the chassis based firewall. We having the lot of slots. इसके पास बहुत सारे slots हैं, और इट्स इज गोइंग टू डिप्लॉय इन द लाइक द मेजर डेटा सेंटर्स, जहां पे आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ड्रिवन नेटवर्क टू द लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क वहां कवर करना है. देन वी कैन डिप्लॉय सच काइंड ऑफ फायरवॉल. बट ऐसा नहीं है कि ये फायरवॉल आप खरीदने जाओ तो बहुत सस्ता मिलेगा. इट्स अ वेरी कॉस्टली फायरवॉल. सो यू हैव टू वाइजली डिसाइड विच फायरवॉल इज बजट फ्रेंडली and also meeting your all security requirement. This is the most important thing you have to understand. If you are not able to understand those things, you are going to waste your money, waste your resources. अगर आपने फायरवॉल खरीद भी लिया, आपके यूजर पे 100 लोग हैं, तो आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं. देयर इज नो यूज. आपने इतना पैसा लगा दिया बट इट्स यूजलेस, राइट.
जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि आप, यू आर द हस्बैंड वाइफ एंड यू हैविंग वन और टू किड्स, राइट? सो यू आर द 4 मेंबर्स, बट आपने 4 BHK एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया, राइट? सो यू कैन नॉट गो एंड स्टे एवरी रूम अनलेस अनटिल आपके ज्वाइंट फैमिली हो और आपके पेरेंट्स भी साथ रह रहे हैं या कुछ और भी फैमिली मेंबर के लोग साथ में रह रहे हैं, सिस्टर वगैरह रह रही हैं, तो दैट रिसोर्स इज गोइंग टू यूटिलाइज, एल्स आपका वो रिसोर्स पूरा वेस्ट हो रहा है। आप एक तो बहुत पैसा दे चुके हो और आप उतना यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे और उसको आपको मेंटेन करने में ज्यादा पैसा खर्च होगा। सिमिलरली आपको जब फायरवॉल खरीदना है तो आपको वाइजली डिसीजन लेना है, माई फायरवॉल रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज, एंड मैं किस तरीके से अपनी सारी सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स है उसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, राइट? सो इसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ डेटा शीट्स पे, सो यू गाइस कैन सी दैट, राइट? क्योंकि अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं तो थोड़ा सा उससे पहले हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मैट्रिक्स है दैट इज रिलीज इन दिस नवंबर इटसेल्फ, राइट? सो इट्स वेरी लेटेस्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना मैं दिखा रहा हूँ, इसी महीने की प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारी है जो 2023 की है। And you can see they are the products: FortiGate, 40F, FortiGate Firewall, FWF is a firewall, 60F, 70F and 80F. These are the firewalls. अगर इसके मॉडल देखोगे तो 90G भी है, 100F भी है, 200F भी है, 400F भी है। नीचे भी मॉडल्स हैं, 900 सीरीज, 600 सीरीज के अंदर भी आपके पास हैं, 2200 सीरीज के भी, 1800, फिर 3200 आपके पास हैं, फिर आपके पास 3500, 4000 सीरीज के पास है, फिर आपके 48, 63, 7000 जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये डेटा सेट, ये 7000 सीरीज के आप देख रहे हो, राइट? सो इस तरीके से आपके पास फिर और भी अब ये तो फायरवॉल हो गए जो हाईएस्ट सीरीज के, आपके 7000 सीरीज हाईएस्ट लार्जेस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पावरफुल फायरवॉल हमारे पास 7000 सीरीज के हैं। लेकिन उससे नीचे वाले फायरवॉल ये सारे हैं आपके पास, राइट? तो थोड़ा सा इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखो, किसी और फायरवॉल को अगर आपको कंपेयर करना है तो किस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। मैं इस फायरवॉल को क्यों खरीदूं, मैं एक फायरवॉल को क्यों खरीदूं, एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आई एम गोइंग टू गेट बाय परचेजिंग दिस फायरवॉल। आपको एक कार खरीदनी है, सो आप एसयूवी क्यों खरीदो, आप हैचबैक क्यों खरीदो, आप सीडान क्यों खरीदो? आपको लॉजिक पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है या मेरे पैसे हैं तो मैं जाके एसयूवी खरीद लूं या सीडान खरीद लूं, ऐसा नहीं। कुछ तो लॉजिक आप लगाओगे ना। व्हाट इज अ नीड, क्या आप चाहते हो, आपको ये कोई ऐसी कार क्यों नहीं खरीदना चाहते हो कि जो मतलब आपके लिए यूजेस में ही ना आ पाए, राइट? जैसे किसी ने थार खरीद लिया, थार और स्टंट मारना तो खरीद लो, कोई बात नहीं है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू मीट योर ऑल रिक्वायरमेंट्स। हो सकता है कि उतनी कंफर्टेबल ना हो थार, बट इट इज टसन, आपको टसन मारनी है तो यू कैन परचेज, आपके पास पैसे हैं तो। सो टोटली डिपेंड। सो जैसे ये फायरवॉल है, जैसे मैं सबसे बेसिक फायरवॉल, छोटी फायरवॉल की बात करता हूँ, तो यू कैन सी 440F मॉडल ऑफ द फायरवॉल है। इसमें फायरवॉल की मैक्सिमम थ्रूपुट्स जो आपकी है that is going to be like 5 Gbps, right, across all like the communications. So in this 5 Gbps throughput, what is the throughput means maximum आपका पैकेट इस स्पीड से फायरवॉल प्रोसेस कर सकता है, मतलब कि मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है किसी डिवाइस का। थ्रूपुट इज मैक्सिमम कैपेसिटी, इट्स प्रोसेसिंग ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक, चाहे वो इन हो रहा है या आउट हो रहा है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज गोइंग टू जस्ट डाइजेस्ट टिल द 5 Gbps। अगर आप वीपीएन आईपीसेक बनाते हो, आईपीसेक टनल बनाते हो, राइट, दैट इज गोइंग टू गिव मैक्सिमम थ्रूपुट अप टू 4.4 Gbps। वी कैन सी अगर इस पे आप किसी तरह का और so Dhirendra is asking, sir, IPsec throughput or port throughput? No, this is the IPsec tunnel throughput. It's not port. IPsec tunnel means IPsec tunnel के थ्रू आप मैक्सिमम इतना आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। That is talking about the tunnel. IPS, right? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, राइट? अगर कोई आपको नेक्स्ट जनरेशन जो भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वायरसेस होते हैं, कोई भी थ्रेट्स होता है, राइट, अगर उनको प्रिवेंट करना चाहते हो तो उसकी मैक्सिमम थ्रूपुट यू कैन गेट 1 Gbps, राइट? थ्रेट प्रिवेंशन जो भी है 600 Mbps आप गेट कर सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल थ्रूपुट आपका 800 Mbps हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप मॉडल बढ़ाओगे, राइट, यू सी द फिगर्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड, यू कैन सी। अगर इस कॉलम से अगर आप इस कॉलम मूव हो गए तो आपका थ्रूपुट भी बढ़ रहा है, किसी न किसी सेक्शन में आपका यहाँ भी डेटा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ गया, बट कुछ चीजें आपका सेम भी रह रही हैं, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो बढ़ रहा है। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी फायरवॉल की लेटेंसी कितनी आएगी इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कंकरेंट सेशन। सो अभी जितनी फायरवॉल हमारे आती है दैट इज ए स्टेटफुल फायरवॉल, राइट? सो स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब ये होता है कि दे आर गोइंग टू मेंटेन द स्टेट्स। मतलब एक सेशन टेबल बनाती है, जैसे आप पोलो ऑल्टो पढ़ते हो या आप
चेक पॉइंट पढ़ते हो या आप सपोज पढ़ो या फोर्टिनेट हम पढ़ रहे हैं, एवरी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सिस्को इज ऑल्सो, everyone is going to make the session inside of the firewall, and based on the session जो भी आपकी communication होता है वो आपका एक तरीके से हर एक फ्लो के लिए सेशन चेक करता है। चेक करने के बाद इफ इट इज अलाइन विथ योर पॉलिसी, अलाइन विथ योर राउटिंग, अलाइन विथ योर नैट एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, देन सेशन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी थ्रू फ्रॉम योर नेटवर्क, राइट। तो इस तरीके से हमारा कंकरेंट सेशन, तो कितना सेशन, अगर मान ले कि चलो कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 लाख सेशंस हैं, राइट। सो इस 7 लाख सेशन के अंदर मान लेते हैं कि आपके पास कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, राइट। एंड इस 100 एम्प्लॉय बहुत सारे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो एट अ टाइम बहुत सारे सेशन बन सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आपका पूरा खत्म हो जाए। And I have the question from the Pradeep Patil: how many tables created FortiGate? So, which table? We just have the one session table. We having the NAT table. We having routing tables. We having the ARP table. So we having a different kind of the requirement. Based on that, the table is created for a different scenario. Application, DNS lookup table we have, right? The cache going to be created. All the application learning URL filtering, that cache table is going to be created. So we having a lot of kind of table, but we are talking about the session table, which is going to be created based on the available routing, based on the available NAT policy, based on the available security policy, then based on the port and protocol number and interface, the session is going to be created. 6 tuple is going to be there, and based on these all 6 tuple, the session is going to be created. This is the basic funda. You can just make as a thumb rule. So session is the one fundamental rule where if your packet is going to hit first time in the firewall, so आपका वहां पे सेशन नहीं होगा क्योंकि आपका पैकेट नया है। लेकिन once the packet is going to process, means आपका एक यूजर आया, right? This is one user, right? And this is your FortiGate or any firewall. Just think about this is a firewall. ये पैकेट यहाँ पे हिट हुआ, इसको कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, could be the internet. So इसका एक सोर्स आईपी एड्रेस होगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस इज द सोर्स आईपी एड्रेस 1.1, इसको जाना है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे, जैसे इसको थिंक अबाउट कि 8.8.8 पे जाना है। सो इस पे जाने से पहले जैसे ही ये इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, तो कैसे पैकेट फ्लो होगा, सो विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप क्या पैकेट फ्लो होगा, कैसे उस आईपी को वो चेक करेगा, फिर कैसे वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सेशन को लुकअप करेगा, कैसे वो एप्लीकेशन लुकअप करेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल करेगा, फिर वो कैसे इंस्पेक्शन करेगा पैकेट को, देन इट इज गोइंग टू बी डेस्टिनेशन। दैट इज गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, पैकेट फ्लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, डोंट मिस दैट क्लास, दैट इज गोइंग टू वेरी interesting. FortiGate firewall packet flow in very deep dive. So you'll understand each and everything in very detail. So अभी उस पे हम नहीं जाते हैं, but any packet is going to be land to the firewall. First time packet land कर रहा है, इस firewall के पास इस packet की information नहीं है कुछ भी, because this source is oriented very first time packet. So what is going to do, the best thing it is going to check the routing, हमारे पास routing है कि नहीं है। राउटिंग चेक किया, क्या हमारे पास कोई नैट चाहिए इसके लिए, सोर्स नैट, डेस्टिनेशन नैट, बेसिकली इट इज गोइंग टू चेक फर्स्ट डेस्टिनेशन नैट, एंड देन व्हाई इट इज गोइंग टू चेक फर्स्ट डेस्टिनेशन देन routing, I'll tell you the reason later stage. What is the logic behind it, why NAT is going to always check destination NAT first then routing? There is a like the foolproof region, okay. And then your security policy. So NAT policy, security policy, these two are the different term, आपको इसमें मिक्स नहीं करना। कभी भी NAT पॉलिसी आपका NAT पॉलिसी होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी, आप इसको ACL समझ सकते हो, राइट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है पॉलिसी, ठीक है। तो ये सारी चीज चेक हो गई। चेक होने के बाद फायरवॉल इज गोइंग टू क्रिएट अ सेशन, और फायरवॉल मेरा सेशन क्रिएट कर लिया, वो सेशन टेबल बना लिया। अब जैसे ही मेरे पास सेशन टेबल यहाँ बन गया, अब यही पैकेट सेम टाइम आएगा दोबारा फायरवॉल के पास, तो ये सारी चीजें चेक नहीं होगी। इट इज जस्ट गोइंग टू कंसल्ट विद द सेशन टेबल, डू आई हैव द अवेलेबल सेशन फॉर दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अगर आंसर इज यस, देन द राउटिंग नैट एंड पॉलिसी नेवर गोइंग टू बी चेक, द पैकेट इज डायरेक्टली गोइंग टू फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन। सो ये हमारा सेशन टेबल का एक ब्रीफ आइडिया हो गया। सो कितने सेशन मेंटेन कर सकता है, इतने 7 लाख सेशन इज गोइंग टू मेंटेन, बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में इतनी सेशन हमारे पास है, मतलब कि इतने ही हम कर सकते हैं। ये बहुत छोटा नंबर है, ट्रस्ट में, क्योंकि आपके पीसी से हजारों सेशन बन सकते हैं। यू नेवर रियलाइज आपकी कंपनी में आपके एक पीसी से हजारों सेशन बन सकते हैं, क्योंकि यू आर जस्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो, यू आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द इंटरनेट, इंटरेक्टिंग विद द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरेक्टिंग विद सम काइंड ऑफ द इंटरनल डेटा सेंटर बेस्ड एप्लीकेशन, यू आर ओपनिंग द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ एट द सेम टाइम। सो ये बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, एंड
you never realize, right? But all the connection is going to back and forth from the firewall. So firewall have to understand their capacity. अगर मैं 40 केजी उठा सकता हूं, अगर किसी ने मुझे दे दिया आप उठाओ इसको 70 केजी, तो हाउ कैन आई डू दैट? इट्स नॉट पॉसिबल. आई विल डाई, राइट? डेफिनेटली आई विल डाई. So this is not my capacity. So you have to figure out the right capacity people who can just cater the 70 kg, load. So similarly, how many sessions we have? So more powerful firewall you purchase, more money you will put, you will get the more kind of the features. Firewall policies, how many you can create firewall policies? 5,000, 5,000. So you will create the 5,000 firewall. You can create the new session per second. How many you create? 35,000, 45,000. You can see here. You can see the SLVPN throughput. How many means the SLVPN? What is SLVPN? Like you are using the 40 client, right? You're just making kind of any kind of the VPN connectivity for the remote home users. So how many throughput I can get from there? So this is the like the throughput maximum I can get with these products. But I want more throughput. I want more speed. So what I can do? I have to jump in the different vendor file means different model of the firewall with the same vendors. Like यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4090 में गए तो सारे फिगर चेंज हो गए आपके. सारे फिगर चेंज हो गए. देखो मिलियंस में बात होने लगे आपके. यहाँ पे 7 मिलियन चला गया, 3 मिलियन चला गया. एंड यू कैन सी सेशंस पर सेकेंड्स. यू कैन सी दीज आर द हाई. एसएसएल थ्रूपुट देखो ये भी हाई हो गया. एप्लीकेशन कंट्रोल देखो. तो वर्चुअल डोमेन मींस कितने आप वर्चुअल राउटिंग कर सकते हो, कितने राउटर बना सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अर्लियर यहाँ पे देखो आपके पास इनमें वर्चुअल डोमेन भी 10 बना सकते हैं. सब में 10 ही है, राइट? बट दिस इज मैक्सिमम वर्चुअल राउटर बना सकते हो. लेकिन यहाँ पे देखो बाकी पैरामीटर्स जो है, इंटरफेसेस देखो यहाँ पे. अब इंटरफेसेस जैसे ही आप हाई एंड फायरवॉल पे जा रहे हो तो यहाँ पे इंटरफेसेस आपको 8G इंटरफेस है. बट जैसे ही आप जाओगे 2x 10G इंटरफेस है. मतलब अगर 10 गिग की सर्किट चाहिए आपको तो वो भी आप इस पे टर्मिनेट कर सकते हो. लेकिन इसे फायरवॉल पे नहीं कर सकते हो आप. 5 गिग के सिर्फ 5 ही इंटरफेस है इस पे. लेकिन अगर आप और भी नीचे फाइल जाओगे तो इसमें देखो 25G के 4 सर्किट इस पे लगा सकते हो. मतलब एक टाइम पे एक ही सर्किट पे 25 जीपीएस डेटा को आप ले सकते हो और उसको एक्सचेंज कर सकते हो. 10G का चाहिए तो 4 सर्किट लगा सकते हो, राइट? यू कैन सी 200 गिग के भी सर्किट इसमें लगा सकते हो. So this is the beauty, right? The more money you are going to invest, more feature you are going to get. सी डेटा सेट आप लोग को थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा इसको अपने प्रोडक्ट हिस्ट्री में रखना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न द FortiGate फायरवॉल, राइट? सो आपको FortiGate के फायरवॉल में एक अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी प्रोडक्ट के बारे में, उसके सेशंस के बारे में, उसकी पोर्टफोलियो के बारे में. ताकि कई बार अगर क्या होता है कि अगर प्रीसेल्स में आपकी जॉब लगती है इन फ्यूचर, सो दीज आर द पैरामीटर इज गोइंग टू हेल्प यू टू ड्राइव योर ऑल करियर. सो अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी सफर. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज, जैसे मैं पोलो अल्टो भी बताता हूँ कि पोलो अल्टो के हर एक फायरवॉल के फीचर के बारे में आप जरूर जानो थोड़े बहुत, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाए कौन से मॉडल फायरवॉल पे काम किया. अच्छा बताओ उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन बताओ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन. सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट अनटिल और अनटिल आपके पास ये सारे डेटा नहीं है, राइट? So that's about this models of the FortiGate firewall. But the more powerful firewall you're going to purchase, you need to pay more money, but you are going to get more features. You can see even you are start getting the local storage as well, 4 TB, 4 terabytes. You can start getting some kind of the 400 GPS. You can see 8 interface, 100 GPS. So you're even getting the 400G cards. You're going to connect and you're going to exchange the traffic about that. सिमिलरली हमारे पास एक तो FortiGate फायरवॉल होता है. 3 कंपोनेंट होते हैं जो मैंने बताया था पहले. एक तो FortiGate फायरवॉल होता है जो हमारा बेसिकली एक फायरवॉल होती है. बस फायरवॉल का काम क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बहुत लेमन तरीके से बताया था वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास ऑफ द FortiGate. विल कवर अगेन विद द वेरी like layman examples कि आप एक घर बनाते हो and once you build your house, how things is going to be protected. सो उस हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या लगाते हो? आप डोर लगाते हो. डोर पे आप लॉक लगाते हो, राइट? डोर लगाया, लॉक लगाया, फिर इस पे आप इससे भी प्रोटेक्शन नहीं होते तो आप डबल डोर लगा देते हो, मतलब डुअल डोर लगा देते हो, उस पे भी लॉक लगाते हो. कई बार इससे भी थेफ्ट हो जाता है. देन यू डिप्लॉय द सिक्योरिटी गार्ड, राइट? सिक्योरिटी गार्ड का भी अगर मान लेते हैं कि समहाउ थेफ्ट हो जाता है उसके रहते हो तो आप सीसीटीवी लगाते हो. बट ऐसा नहीं कि आप इतना कुछ खर्च करने के बाद भी आपका थेफ्ट घर में रुक जाएगा. नहीं, स्टिल देयर इज चांस कि सीसीटीवी लगा हुआ है और द पर्सन इज गोइंग टू बी अगेन कम इनसाइड. एंड होता है, दिस इज रियलिस्टिक. सीसीटीवी लगा होता है फिर भी लोग क्राइम करते हैं. बट देयर इज अ चांस सीसीटीवी अगर लगा हुआ है मेरे पास और सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे पास है, तो देयर इज अ चांस कि आई कैन गेट द एविडेंस एंड आई कैन
कैच द कल्प्रिट, और उसको मैं जेल भिजवा सकता हूँ, आई कैन रिकवर माई मनी। सो मैंने सिंपल दरवाजा लगा देता तो मेरा हो सकता है कि मेरा काम हो सकता है कि 10,000 में मेरा हो जाता है, राइट। इट इज गोइंग टू जस्ट 10,000 टू गेट्स इज गोइंग टू बी डिप्लॉय। जस्ट मैं छोटा सा फिगर दे रहा हूँ, इट कुड बी द मोर, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर कितने का आता है गेट एक। सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे तो हो सकता है उसकी मंथली सैलरी अगेन 10,000 और होगी, एंड सीसीटीवी लगाऊंगा तो अगेन 10,000 और। तो द मोर सिक्योरिटी यू आर पुटिंग टू प्रोटेक्ट योर हाउस, यू हैव टू पे मोर मनी, यू सी। सो जहां भी आप कंप्रोमाइज करोगे तो आपका मनी कंप्रोमाइज होगा, तो आपका सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज होगा। सिंपल सा फिलोसफी है, राइट। आपको ज्यादा पैसा देना है तो ज्यादा आपको फीचर मिलेंगे। सिमिलरली आपके ये सारे फीचर आपको लेने हैं, यू वांट टू गेट मोर स्पीड, यू वांट टू गेट ओके। सो गाइज माय वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन, कैन समवन कंफर्म, is it I got No, some no, 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 Ritesh? sir, no it's No, all no. problem. good. All All good, good. all good. Okay. Yeah. So, Ritesh, probably you have to check from your side. Sorry for that. Maybe we have a network issue. Yeah, yeah, that could be. Thank you, everyone. So that's why we are talking about the FortiGate firewall. So FortiGate firewall is like a very awesome firewall, very lightweight firewall, and we having the very good features, variety of the flavor available in the market. Similarly, we having the Forti Manager. So why we need the Forti Manager? We'll do the deep dive over the Forti Manager at this stage, but just understand, just centralized management platform. So इसके भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, मतलब कि जैसे Palo Alto में पैनोरमा होता है, राइट। पैनोरमा में क्या करते हो कि जैसे आपकी बहुत सारी फायरवॉल है, राइट। सो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी फायरवॉल फायरवॉल A B C D है। अब आपको कोई एक छोटा चेंज करना है, आपके मैनेजर ने बोला कि जस्ट डू वन चेंज, कि आपको इस पे SNMP की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। अभी तो मैंने 4 बताया, लेकिन हो सकता है कि 400 ही फायरवॉल हो सकती हैं। तो SNMP की चेंज करना, और सब पे एक ही चेंज करना है कि उस पे SNMP का IP आपको चेंज करना है 2.2.2. जस्ट एग्जांपल, ठीक है। एक पब्लिक IP एड्रेस है, ये नहीं डालते हैं, बट इट कुड बी, राइट। तो आपके अगर 400 फायरवॉल है, सो आपको 400 फायरवॉल पर लॉग इन करके एंड यू जस्ट हैव टू मेक दिस चेंज। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज मोनोटोनस जॉब। मैंने क्या किया कि एक डब्बा यहाँ लगा दिया, और इन डब्बे से मैं सबको कनेक्ट कर दिया, इन फायरवॉल को इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे आप लोग एसडीएमएल में पढ़ते हो, वी मैनेज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इसी डब्बे को यहाँ पे पैलो अल्टो में बोलते हैं पैनोरमा, राइट। तो पैनोरमा इज अ डिवाइस जहां से हम बैठकर जितनी फायरवॉल है उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, वहां से कोई भी रिपोर्ट लॉग कुछ भी कर सकते हैं। So this panorama is just going to manage all the firewalls. Single pane of glass, central located in somewhere in my network, right? In data center. बस मुझे उस डिवाइस पर लॉग इन करना है, और एक बंदा लॉग इन करके it is going to deploy all the changes to all the network devices. This is how it is going to be happen. This is about the panorama. Similarly, the Forti Manager is the one of the tool in the FortiGate. Forti Manager, that is centralized management, कि panorama को replace करके ये सारी Palo Alto की फायरवॉल की जगह FortiGate की फायरवॉल है, सारी 400 जो भी फायरवॉल है, सेम काम को करना है, कुछ और अलग नहीं करना है, SNMP चेंज करना है, मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ चेंज यू वांट टू डिप्लॉय टू द ऑल फायरवॉल। सो आपको Forti Manager पे जाकर लॉग इन करना है, आपको Forti Manager पर लॉग इन करना है, दैट इज सेंट्रलाइज सिंगल पैन ऑफ ग्लास अगेन, और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, पुश करो, हो जाएगा। वहां से ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट जो करना चाहो सारा कुछ हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्टी मैनेजर। सो यू कैन सी कि आप यहाँ पे फोर्टी मैनेजर के आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं, मतलब मॉडल्स हैं, 200 है, 410 है, यहाँ पे 1000 है, 3000 है, 3700 है, एंड सम आर द लाइसेंस बेस्ड आल्सो वी हैव VM बेस्ड, राइट। सो यू कैन सी कि कितने इसमें VDOMs मैक्सिमम बना सकते हैं। VDOM like just splitting the firewall to the multiple firewall, right? So you can see more Forti manager we have powerful, more we can do that, right? सस्टेन लॉग रेट्स, इनके ये हैं रेट इनके, राइट। और टोटल इंटरफेसेस पे देखो, स्टोरेज कैपेसिटी देखो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो डिवाइसेस बेसिकली इसमें 30 मैनेज कर सकते हो, राइट, एंड वीडो मैक्सिमम 30 बना सकते हो, इस पे आप 150 कर सकते हो, इस पे आपको 1000 कर सकते हो, 4000। अगर कंपनी में आपका 700 आपके पास डिवाइस है जो आपको मैनेज करना, तो आपको यही परचेज करना पड़ेगा। आप ये करोगे तो नहीं कर पाओगे, राइट। सो आपको कितना लॉग स्टोरेज करना, अगर आपको इससे ज्यादा मतलब 8 into 32 GB से ज्यादा लॉग एक्सेस करना है, राइट। सो आपको ये लेना पड़ेगा फिर। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू जस्ट हैव टू परचेज द प्रोडक्ट, right? So centralized management, we'll do the again discussion on it, right? So moving next, we are having the 4D analyzer. So what is the 4D analyzer? So this is the central, again a tool, central tool, तो just logging and reporting means आपको कोई log चाहिए, कोई report चाहिए, आप इस tool पे login करो, आप वहां सारा report fetch कर लो। तो इसमें भी अलग अलग कितने दिन तक log ये रख सकते हैं, right? You can see
क्या लॉग है, सस्टेन रेट क्या है इनका, टोटल इंटरफेसेस क्या है, ये सारे। तो ये जस्ट इट इज जस्ट वन ऑफ द माई टूल वेयर आई कैन जस्ट गेट ऑल लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग। इस तरह से एक हमारे पास सेम हमारे पास टूल होता है, FortiGate का ही एक हमारे पास टूल होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली हमारे पास एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो ये भी एक तरीके से लॉगिंग रिपोर्टिंग के लिए काम आता है, बट दिस इज मोर अबाउट द इवेंट, like what event is happening in my network, what kind of risk associated with those events. So if अगर आपको उसको एनालाइज करना तो आप 40 सेम को भी आप यूज कर सकते हो। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेटर, यूजर को ऑथेंटिकेट करना कैसे, 40 एपी जो वायरलेस के लिए यूज होता है, 40 स्विच जो अपने स्विच में कनेक्ट करते हो, तो बहुत सारे 40 नैक भी है, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल हमारे पास है, इसको भी 40 सैंडबॉक्स भी हमारे पास है, 40 क्लाइंट्स भी है, 40 मेल्स भी है, तो बहुत सारी चीजें, 40 वेब भी है। हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, but we'll have to understand about that, 40 manager, 40 analyzer, and FortiGate firewalls. So we'll more focus about the FortiGate firewalls, and we understand about the other functionality of the 40 manager and the 40 analyzer and the 40 clients as well, right? I hope till now you guys are happy. Any question here? Anyone having any doubt who want to talk to me? नो हेलो। सर। Yes, Sasikant, please tell me, बताइए। सर मैं क्या है अभी ज्वाइन किया हूँ अपना ऑफिस, मेरा एमशॉक में हुआ है, तो यहाँ पे क्या हाँ 40 नेट चलता है फायरवॉल। हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि मुझे कोई इशू आता है तो मैं आपसे कंफर्म करके ट्रबल शूट करके वो कर सकता हूँ। बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस लर्निंग यही हमारा है कि जब आप हमारे सेशन के थ्रू आउट द सेशन कंप्लीट करोगे, जो भी हमारा ऑलमोस्ट 2 महीने का सेशन होगा, सो यू हम्म। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच कैसे कॉन्फ़िगरेशन होना है, कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, कैसे चीजों को हम देखते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मी। सो आपको एक एक स्टेप, एक एक सिनेरियो में समझाऊंगा, एंड देन यू कैन इजिली ट्रबल शूट। मतलब पढ़ाई करने का मतलब यही होता है कि हम सीखेंगे एंड विल जस्ट इंप्लीमेंट दोस थिंग इन माय प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्योंकि ये सारी चीजें जो लैब्स में क्रिएट करूंगा, आपके सामने भी जो लैब क्रिएट करने जा रहा हूँ, दैट इज हम्म। एक्चुअल थिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो वही सारी चीजें होने वाली हैं जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। बस यहाँ लैब होगा, वहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क होगा, बट बाकी कैसे एक्चुअली क्योंकि यहाँ पॉलिसी। पे वाईफाई के साथ 40 नेट वाईफाई यूज होता है यहाँ पे। हाँ, तो दैट्स वाई ना, ये 40 स्विच भी आपने देखा, 40 प्रोडक्ट भी आपने देखा, आपने बहुत सारी चीजें देखा। तो हम्म। ये सारी चीजें आपका होता है। अजय, वीडोम इज जस्ट वर्चुअल डोमेन्स हमारे पास होते हैं। जैसे कि आपको एक ही फायरवॉल को, जैसे वीआरएफ होता है राइट, एक राउटर में हमारे पास मल्टीपल राउटिंग टेबल बनाना होता है, तो हम यूज करते हैं वीआरएफ। सो वैसे ही अगर एक फायरवॉल के अंदर आपको मल्टीपल फायरवॉल बनानी है तो वीडोम आप से स्प्लिट कर सकते हो, राइट? विल डिस्कस, वी हैविंग दिस टॉपिक इन आवर डिस्कशन, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर स्टेज। यस तरुण, यू आर आस्किंग समथिंग। Yes, yes. Actually, sir, actually, I wanted to know why Fortinet, what is the basic difference between Fortinet and Palo Alto, and why people are moving to Palo Alto these days more instead of Fortinet? That's indeed a good question, right? I appreciate that. So I didn't discuss today because it was already well discussed in the previous one of the demo session. But let me just brief you. That's a really good Mm, question, right? So we having a two source to understand this, answer, right? Two source, right? One is the Gartner Magic Report, Magic Quadrant Gartner Report, right? This is okay. the this is the global Yeah, the organization, global right? organization which Yeah, give reports yeah. for Who's give the reward for all the products, right? technologies. Yeah, all the Yeah. technology, right? So in this technology report, you can see that uh, we having a three products in the market who are the leaders, right? As per the 2022 last year September survey, I have to update this slide based on the this year's survey. So in this survey, sometime you'll find Palo Alto on the top or 40 just behind the Palo Alto. Sometime you'll find 40 Net is on top and Palo Alto behind, and Checkpoint is like this. So these three products are, I can say, equally important. It's not like कि मुझे 48 आता है तो Palo Alto नहीं सीखना है, और मैंने Palo Alto सीख लिया तो मुझे 48 सीखने की जरूरत नहीं है, या चेक पॉइंट सीख लिया तो बाकी सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये तीनों ही वेंडर ने ना पूरा मार्केट कैप को कवर कर रखा है। सो लेट्स सपोज इफ वी हैविंग 100% मार्केट कैप, राइट, तो इसमें से 70 और 80% जो है ना, इनका मार्केट है। सो दे हैविंग द मार्केट इन 70 एंड 80%। मतलब उसमें से कुछ कस्टमर आपके Palo Alto को मिलेंगे, कुछ आपको FortiGate का मिलेंगे, कुछ आपका चेक पॉइंट का मिलेंगे। बट मोर अगेन, इफ यू आर गोइंग टू सेग्रीगेट दिस परसेंटेज, ये 70% जस्ट टेकन अ फिगर,
तो आपको हो सकता है कि FortiGate का आपको यहाँ पे 40% मिल जाए या 35% मिल जाए, या Palo Alto का आपको ज्यादा नंबर में लिख दिया सॉरी। सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको FortiGate का आपको 20% मिल जाए, यहाँ पे इसको Palo Alto का 30% मिल जाए, और अगेन 20% या 15% आपका चेक पॉइंट का मिल जाए, या 25 ये मिल जाए। इस तरीके से हो सकता है फिगर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि Palo Alto का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। ईज टू इम्प्लीमेंट FortiGate भी सेम, ये सारा का डीएनए सेम है, इनके फाउंडर जो है ना ऑलमोस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं तरीके से। सो दे आर वेरी क्लोजली वर्क टुगेदर, एंड आपस में अलग होकर इन्होंने 3 कंपनी खोल दी, राइट। सो कहीं ना कहीं इनका डीएनए मैच होता है, और कोई भी आप प्रोडक्ट सीख लेते हो तो दूसरा सीखना आपके लिए बहुत ईजी होता है। So long story in short, right? If you are going with either of the vendor, like the Fortinet or Palo Alto, more specific, checkpoint का थोड़ा सा मार्केट कैप कम है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में। जो मेरा सर्वे है, मेरे हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये दोनों सीख लेते हो तो यू आर द सुपरमैन फॉर द फायरवॉल इन द मार्केट। आपको कहीं जॉब की टेंशन नहीं है, राइट? आपको कहीं भी जॉब की टेंशन नहीं है। सो आई कैन से यस, based on the Gartner report, these are the leaders, and Fortinet and Palo Alto always going to lead the market. So if they are covering the more market, so we having the more engineers requirement. And if you know about the product and the solution, आपकी हमेशा जॉब रहेगी रहेगी। दूसरा हमारे पास सोर्स है eSecurityPlanet.com। इसमें आप अगर Palo Alto को और Fortinet को कंपेयर करोगे, देखो मोस्ट ऑफ द केस में आपका Palo Alto और ये Fortinet सेम है। यहाँ भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम, यहाँ भी देखो थोड़ा सा ठीक है, बट कुछ एक सेक्शन में वैल्यू फॉर मनी थोड़ा सा Palo Alto गुड है, लेकिन ये आपका ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो ज्यादा बेटर ही है, ठीक है। तो पैसा जहां आता है ना, तो लोग थोड़ा प्रोडक्ट जहां पे थोड़ा कम भी रहता है ना, तो लोग सोचते हैं यार चलो थोड़ा पैसा तो बच रहा है मेरा, तो वो लोग चले जाते हैं FortiGate के पास। बट Palo Alto बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छी फायरवॉल है, बहुत रिलायबल फायरवॉल है, बहुत अच्छे फीचर हैं। FortiGate भी उससे कम नहीं है। बोथ आर 100% इक्वल, आई कैन से। अगर मेरे से न्यूट्रली पूछो तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यही है कि हाँ थोड़ा सा FortiGate सस्ता पड़ता है, तो मार्केट में इसको ज्यादा थोड़ा लोग लगा लेते हैं। बट Palo Alto को भी अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। तरुण, आई होप यू No, अंडरस्टैंड no. लिटिल बिट। या ना, मैं आई नो दीज थिंग्स, आई नो गार्टनर रिपोर्ट वगैरह मैंने देखी थी। मैं समझना चाह रहा था कि इनका डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों में, मतलब एज ए, मतलब टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी तो सेम ही है, तो इनका मतलब जैसे कोई कह लो कि कुछ बैकएंड में जैसे हम करते हैं, जब हम डिप्लॉय करते हैं वर्चुअली वीएम बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उन उस केस में क्या डिफरेंसेस हैं इनके? देखो आप डिफरेंसेस अगर आप, टोपोलॉजी या कुछ ऐसा कह लो नहीं नहीं वैसा नहीं, हाँ। टोपोलॉजी में कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट। देखो अब होता क्या हम्म है कि देखो FortiNet हमारे पास 3 फायरवॉल को मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, जस्ट फॉर द प्रीवियस नॉलेज, राइट। सो हम्म आपको बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगे FortiGate Palo Alto में, अलग अलग नाम से मिलेगा। यहाँ पे कुछ फीचर होगा, उसका अलग नाम यहाँ होगा, राइट। हम्म तो आपको, अगर आप पूछते हो कि क्या पोलो अल्टो में एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस फीचर अवेलेबल है विद द वाइल्ड फायर, तो आपको वही चीज आपको FortiGuard थ्रेट इंटेलिजेंस के नाम से मिल जाएगा FortiGate के अंदर। एप्लीकेशन विजिबिलिटी इसके अंदर है, तो यस इसके अंदर इंट्रूजन प्रिवेंशन इसके अंदर है, ये भी है। इसके अंदर पैनोरामा, इसके Forti मैनेजर है, देखो। तो ऑलमोस्ट यू विल गोइंग टू फाइंड कि सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके अगर क्लाउड सोल्यूशन की बात करें तो प्रिज्मा एक्सेस इसके पास है, FortiCAS भी इसके पास है, देखो। बस ये नेमिंग भी, कन्वेंशन अलग है हाँ बस। नेम कन्वेंशन अलग है। जैसे आपके पास 2 कार हैं, जैसे ऐसे समझो कि आपने एक कार खरीदने गए, एक आपके पास हुंडई की कार है, एक आपके पास आपने टाटा की कार खरीदने गए। और कार के अंदर 4 टायर तो होंगे, 4 दरवाजे भी होंगे, राइट, एक शीशा भी होगा और 2 वाइपर भी होंगे, राइट। बस क्या हो सकता है कि आपने थोड़ा ज्यादा पैसे दिए तो आपकी एसेसरीज इनसाइड का थोड़ा चेंज हो जाए, इंटीरियर चेंज थोड़ा मिले आपको, यही हो सकता है ना। थोड़ा लुक एंड हाँ, फील भी थोड़ा चेंज मिले, बाकी कार वो भी रोड पे चलेगी, वो भी 100 की स्पीड चलेगी और ये भी चलेगी, राइट। बट बस आपको अच्छा म्यूजिक का, ब्रांड हाँ बस अलग है। ब्रांड अलग हो गया, दैट इज द सेम थिंग। हम्म, सो सेम इज द हेयर, Palo Alto Fortinet इज लाइक द चेक पॉइंट। आपको बहुत सारे फीचर आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे विद डिफरेंट नेम, बस दैट्स ऑल, राइट। So I believe we are good. So let's start the second part, and we'll have the any other question. Manish, you want to ask anything? Sir, I have one question. Actually, I know well Palo Alto checkpoints and Paranoma. Mm-hmm. So, you derive here for ये जो पालो अल्टो, अगर जो मान लीजिए बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, तो Mm. ये सीखना हम लोग के लिए बेनिफिट रहेगा।
Definitely, if you know the Palo Alto, it is going to very easy for you. You'll find a lot of differences in terms of terminologies. Because I'm working on it Accenture in Pune company, in Mm-hmm. Pune location. Mm-hmm. So that's why what is the more advantage for me? Definitely, if you already know the Palo Alto की आपको अच्छी knowledge है, and the moment you learn the FortiGate, and आपको सारे deployment, आपके component, concept, सारे concept clear हो जाते हैं FortiGate के बारे में, and the moment you are going to write this Palo Alto and the FortiGate in your CV, you're having the more opportunity for the market for the new jobs, or might be internally you're going to promote if you're having the requirement in the different project having the FortiGate firewall requirement to the Palo Alto, तो वहां पे आपका कुछ एडवांटेज मिलेगा जरूर. तो मैंने जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो जिनको अगर अच्छी क्लाउड प्रॉक्सी की नॉलेज है, the people having the good knowledge about the Palo Alto and the FortiGate, they are like the cream in the market. They are the unique in the market. They are withdrawing very good salary in the market with the 5, 6, 10 year of experience.